Hi students, welcome at KitKan Digital Learning. I am your SST teacher. Today I am presenting lecture number 2 and the topic is Our Planet Earth from your book We Learn SST Class 6. published by Oxford University Press. Before start our today's topic, I would like to advise you few tips for effective learning and take maximum benefits from KitKan Digital Learning. Number 1, like and subscribe channel so don't missing any video. Number 2, carefully listen and watch video from start to end. Number 3, find out the answer of the question from the video. May watch multiple times video till find out the answer. Let's start our topic. Our Planet Earth. The Earth is our home. Considering the size of the universe, the Earth is very small. Earth is the third closest planet to the Sun and the only planet which can sustain life in water, on land and in the air. अर्थ जो है वो हमारा घर है। यूनिवर्स के मुकाबले में अर्थ बहुत ही ज़्यादा छोटी है। अर्थ तीसरा प्लैनेट है जो सन के करीब है। अर्थ एक ओनली प्लैनेट है जहाँ पर ज़िंदगी है, जहाँ पानी है, ज़मीन है और हवा है। Earth is rotating around an imaginary axis which has a top and a bottom. The top and the bottom end are called poles. Having a top and a bottom of the earth helps us to draw the lines of longitude. अर्थ एक इमेजनरी एक्सिस, एक इमेजनरी लाइन पर खड़ी है जिसके टॉप और बॉटम को हम लोग पोल्स कहते हैं। For a long time people believed that the earth was a flat disk floating on water. They did not know about gravity and believed that the flat surface prevent them from falling off the planet. In the 17th century, an English scientist, पहले के ज़माने के लोग ये समझते थे कि अर्थ जो है वो एक फ्लैट डिस्क है जो पानी पर तैर रही है। उनको ग्रेविटी के बारे में पता नहीं था। In 17th century, an English scientist Newton discovered that the force of gravity pulls all objects to the center of the earth. This is why we do not fall off the earth, nor do we float in the air. 17th century में एक इंग्लिश साइंटिस्ट न्यूटन ने डिस्कवर किया ग्रेविटी के बारे में, जो सारे ऑब्जेक्ट, सारी चीज़ों को अर्थ के साथ कनेक्ट रखती है, जोड़ कर रखती है। ग्रेविटी की वजह से ही हम लोग अर्थ पर ना ही गिर सकते हैं, ना हवा में उड़ सकते हैं। The half of the earth that is facing the sun's rays will experience day, while the half of the earth that is away from the sun rays will experience night. आधी अर्थ जिसका मुँह सन की तरफ हो वहाँ पर दिन होता है और जिसका मुँह सन की तरफ ना हो वहाँ पर रात होती है। Revolution. When one object completes an orbit around another object, it is said to have completed revolution. Earth revolves around the sun, taking 365 days to complete one revolution. This is called a year. It has 365 days. The earth revolves in a counterclockwise path in an elliptical orbit. कोई भी ऑब्जेक्ट किसी भी ऑब्जेक्ट के इर्द गिर्द अपना चक्कर पूरा करता है तो उसे हम लोग रेवोल्यूशन कहते हैं। अर्थ जो है वो सन के अराउंड रिवॉल्व करती है, सन के अराउंड घूमती है, जो अपना चक्कर 365 डेज़ में पूरा करती है, जिसको हम एक साल कहते हैं। सोलर एंड ल्यूनर इक्लिप्स. An eclipse occurs when the light of the sun is particularly or totally blocked either by earth or moon. सोलर इक्लिप्स हम उसे कहते हैं जिसमें चांद गिरन और सूरज गिरन होता है। सोलर इक्लिप्स सूरज गिरन को कहते हैं और ल्यूनर इक्लिप्स हम लोग चांद गिरन को कहते हैं। सोलर इक्लिप्स यानी सूरज गिरन तब होता है जब सूरज और अर्थ के बीच में मून आ जाता है, और मून ल्यूनर इक्लिप्स जो कि चांद गिरन होता है वो तब होता है जब अर्थ सन और मून के बीच में आ जाती है। हमारे अर्थ के पास बहुत ही बड़ी ज़मीन के हिस्से हैं जिसे हम लोग कॉन्टिनेंट्स कहते हैं, और बहुत ही बड़े पानी के हिस्से हैं जिसे हम लोग ओशियंस कहते हैं। हमारी अर्थ पर टोटल 7 कॉन्टिनेंट्स हैं जिसका नाम है अफ्रीका, एंटार्क्टिका, एशिया, ओशियनिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका। एशिया जो है सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है और सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाला कॉन्टिनेंट है। दुनिया की 9% जो ज़मीन है वो एशिया में है। एशिया में बहुत सारे कंट्रीज़ हैं जिनके अलग अलग कल्चर हैं, अलग अलग एनवायरनमेंट है, अलग रिलीजन्स हैं, अलग उनकी हिस्ट्री है, अलग बैकग्राउंड है, अलग गवर्नमेंट सिस्टम है। पाकिस्तान भी एशिया में ही है। अफ्रीका जो है वो दूसरे नंबर पर सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है।
और दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाला कॉन्टिनेंट। इसमें टोटल 54 कंट्रीज़ हैं, कुछ बड़े हैं और कुछ छोटे हैं। अफ्रीका जो है वो कई हद तक अर्थ के बीचों बीच पाया जाता है, इसलिए वहाँ पर ज़्यादा गर्मी होती है। दुनिया के ज़्यादातर जानवर अफ्रीका में ही पाए जाते हैं। नॉर्थ अमेरिका तीसरे नंबर पर सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है और चौथे नंबर पर सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाला कॉन्टिनेंट है। इसमें यूनाइटेड स्टेट, मैक्सिको, कनाडा, ग्रीनलैंड जैसे बड़ी लैंड वाले कंट्रीज़ आते हैं। उसके बाद है साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका चौथे नंबर पर सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है और पाँचवें नंबर पर पॉपुलेशन वाइज है। इसमें ब्राज़ील, अर्जेंटीना, पेरू और चाइल जैसे कंट्री आते हैं। अंटार्कटिका पाँचवें नंबर पर कॉन्टिनेंट है। ये साउथ पोल की साइड लोकेटेड है। यहाँ पर ज़्यादातर ग्लेशियर हैं, जिसे हम लोग बर्फ़ के पहाड़ कहते हैं। यहाँ का मौसम बहुत ही ज़्यादा ठंडा, ड्राई और विंडी है। इसके ऐसे हार्श वेदर की वजह से यहाँ पे बहुत ही कम लोग रहते हैं। यूरोप में टोटल 50 कंट्रीज़ हैं। ये तीसरे नंबर पर मोस्ट पॉपुलेटेड कॉन्टिनेंट है और एरिया के हिसाब से, ज़मीन के हिसाब से ये छठे नंबर पर कॉन्टिनेंट्स में है। रशिया जो पूरी दुनिया का सबसे बड़ा कंट्री है, ये यूरोप में है। इसके अलावा यूरोप में फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूनाइटेड किंगडम, स्पेन और भी बहुत सारी कंट्रीज़ हैं। ओशिनिया ये सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है। इसमें ऑस्ट्रेलिया भी आता है। ऑस्ट्रेलिया में बहुत ही यूनिक किस्म के पौधे और जानवर उगते हैं। ओशिनिया के इर्द गिर्द इंडियन ओशियन है और पैसिफिक ओशियन है। ओशियंस दुनिया में टोटल 5 ओशियंस है। पैसिफिक ओशियन दुनिया का सबसे बड़ा ओशियन है। पैसिफिक ओशियन में तकरीबन दुनिया का आधा पानी है। अटलांटिक ओशियन दूसरे नंबर पर सबसे बड़ा ओशियन है। इसमें 20% अर्थ का पानी है। इसमें बहुत सारे आइलैंड भी है, जिसमें बहामास, ग्रीनलैंड, कनारी और यूनाइटेड किंगडम जैसे आइलैंड हैं। इंडियन ओशियन ये तीसरे नंबर पर ओशियन है। इसका पानी सारे साल बहुत ही ज़्यादा वार्म रहता है। अंटार्कटिक ओशियन ये चौथे नंबर पर सबसे बड़ा ओशियन है। इसको साउथर्न ओशियन भी कहा जाता है। लास्ट में द आर्टिक ओशियन ये सबसे छोटा ओशियन है। विंटर में ये पूरा ओशियन जो है वो आइस से कवर हो जाता है। ये ग्रीनलैंड, कनाडा, अलास्का और रशिया के बॉर्डर के साथ लगता है। Hope you enjoyed and learned basic concept of today's topic we have presented on the platform of KitKat Digital Learning. Don't forget to find out the answer of the question and reply answer of the question on within 24 hours to maintain your summer vacation learning project. Marks as total 10 marks in your final term exams based on reply all questions. Hope to see you in next topic and learn more new concepts. Thank you and bye bye.